Okay students, let's continue chapter 13, that is photosynthesis in the higher plants. Students, in the previous lectures we discussed about the two phases of photosynthesis, that is the light phase which is known as biochemical phase and the dark phase which is known as biosynthetic phase. स्टूडेंट्स हमने देखा कि लाइट फेज में एसिमिलेटरी पावर प्रोड्यूस होती है, दैट इज एटीपी एंड NADPH2, एंड दिस एसिमिलेटरी पावर इज यूज्ड इन द डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस which is the biosynthetic phase for the fixation of carbon dioxide and how the carbohydrates are produced. And this dark phase, it occurs in the stroma of the chloroplast. स्टूडेंट्स हमने देखा कि डार्क रिएक्शन में वी डिस्कस्ड अबाउट द टू मोड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. फर्स्ट वाज द C3 साइकिल एंड द सेकेंड वाज C4 साइकिल. C3 साइकिल जो है इट इज़ नोन एज कैल्विन साइकिल. And why it is called C3? Because in this the first stable product of photosynthesis was a 3 carbon compound, and that is PGA, phosphoglyceric acid. Whereas in C4 pathway, which is Hatch and Slack pathway, here the first stable product of photosynthesis is a 4 carbon compound, and that is oxaloacetic acid. That's why it is called C3 and C4 pathways. Students, then I also mentioned that the C3 plants, they suffer from photorespiration, whereas the process of photorespiration does not occur in the C4 plants. In today's lecture, students, we will discuss in detail about the photorespiration, and we will also study about the various factors that affect the rate of photosynthesis. So let's start today's lecture with the first topic, that is photorespiration. Okay, the process of photorespiration, it was first demonstrated in the tobacco plant by Decker and Teo in 1959. फोटोरेस्पिरेशन जनरली टेम्परेट प्लांट्स में होता है. फॉर एग्जांपल राइस है, व्हीट है, बार्ले है, बीन प्लांट है. सो मोस्टली ये देखा गया स्टूडेंट्स कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स में फोटोरेस्पिरेशन होता है. पर्टिकुलरली उन प्लांट्स में होता है जिसमें कौन सा साइकिल है, C3 साइकिल है, या जो प्लांट्स जो हैं वो केल्विन साइकिल पाथवे को फॉलो करते हैं, दे सफ़र फ्रॉम द फोटोरेस्पिरेशन. And the process is defined by Krotkov in 1963. He said an extra input of oxygen and extra release of carbon dioxide by the green plants in the presence of light. So what is photorespiration? It is extra input of energy. आप हमारे अंदर किस चीज़ का इंटेक हो रहा है प्लांट में? ऑक्सीजन का. Right students, so there is extra input of oxygen and extra release of carbon dioxide by green plants in the presence of light. फोटोरेस्पिरेशन को हम ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं. स्टूडेंट्स, इसको हम फोटोरेस्पिरेशन जो है इसमें इसको जैसे हम 2 कार्बन पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ अ 2 कार्बन कंपाउंड एंड विच इज़ नोन एज ग्लाइकोलेट. सो दिस पाथवे इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लाइकोलेट पाथवे, या स्टूडेंट्स हम इसको जो है वो ग्लाइकोलेट साइकिल भी बोलते हैं. ओके, नाउ what happens is in the Kelvin cycle, हमने Kelvin pathway पढ़ा. C3 साइकिल स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया. C3 साइकिल में हमने देखा कि किस तरह से जो RUBP है, RUBP, what is RUBP? It is ribulose 1,5 bisphosphate. ठीक है, राइबुलोस RUBP जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन किया, एंड इंजाइम क्या था स्टूडेंट्स? दैट इज रुबिस्को, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ PGA. So what is PGA? PGA is phosphoglyceric acid, which is a 3 carbon compound, and that process was taking place in the C3 plants in the presence of enzyme that is known as Ribisco. Active site of Ribisco can bind to CO2 and ऑक्सीजन, हैंस द नेम. हमने ये भी देखा स्टूडेंट्स के रुबिस्को जो है उसकी एक बहुत रिमार्केबल प्रॉपर्टी है. सो व्हाट इज़ दैट प्रॉपर्टी? इट कैन फिक्स नॉट ओनली द CO2 बट ऑक्सीजन ऑल्सो.
ठीक है। सो ये डिपेंड करेगा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। स्टूडेंट्स, इफ इन द एटमॉस्फेयर द concentration of carbon dioxide is more, then this Ribisco, which is a remarkable enzyme, it will work according to the environmental conditions of carbon dioxide. if अगर environment के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का concentration जो है वो ज़्यादा है, increased concentration है, तो जो Ribisco जो है it will act as carboxylase. But if in the environment the concentration of carbon dioxide का concentration जो है वो decreased है, less है, but concentration of oxygen जो है वो ज़्यादा है, तो Ribisco जो है it will act as oxygenase. But it has greater affinity for carbon dioxide than oxygen. This binding is competitive. Relative concentration of oxygen and carbon dioxide determines which one will bind to the enzyme. So ये according to environmental concentration है कि Ribisco जो है वो अपना रोल प्ले करेगा as a carboxylase और as a oxygenase. So हमने ये देखा कि Ribisco जो है एक ऐसा एंजाइम है, इसकी affinity जो है for carbon dioxide is more than oxygen, right students? And it is a very remarkable enzyme because it not only fixes the carbon dioxide but also the oxygen. Next, in C3 plants, some oxygen binds to Ribisco. Students, अब हमने देखना है कि C3 plants में क्या होता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम है और ऑक्सीजन जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो Ribisco है उस ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो RUBP है, Ribisco एंजाइम जो है वो एज अ ऑक्सीजनेस एक्ट करेगा और RUBP बाइंड करेगा विद ऑक्सीजन. सो हेयर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट? सो RUBP बाइंड्स विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म one molecule of phosphoglycerate and one molecule of phosphoglycolate. स्टूडेंट, ये अभी हम साइकिल नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल साइकिल पढ़ेंगे. तो इसमें आपने देखना है कि फोटो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है. फोटो रेस्पिरेशन एक वो प्रोसेस है जब एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होता है, तो उसमें जो हमारा Ribisco एंजाइम जो है वो एज ऑक्सीजनेस एक्ट करेगा. RUBP जो है C3 में अभी हमने देखा, अभी मैंने आपको बताया कि जो C3 साइकिल था या केल्विन साइकिल था उसमें RUBP किससे कंबाइन कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. सो उसमें क्या था, जो हमारा RUBP जो था और Ribisco जो था वह कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट कर रहा था और RUBP जो है वो किससे कंबाइन कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड में, and it results in the formation of PGA, that is a 3 carbon compound. But here what is happening, here the Ribisco is acting as oxygenase. So RUBP जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और वो 1 मॉलिक्यूल जो है वो फॉस्फोग्लिसरेट का बनाएगा और 1 मॉलिक्यूल जो है वो फॉस्फोग्लाइकोलेट का बनाएगा और इस पाथवे को हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन. इन दिस पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ शुगर. यहाँ पे कोई शुगर नहीं बनेगा, ATP और NADPH भी नहीं बनेगा. इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन जो है एक हार्मफुल प्रोसेस है बिकॉज इसमें कोई एसिमिलेटरी पावर प्रोड्यूस नहीं हो रहा और कोई इसमें सिंथेसिस ऑफ शुगर नहीं हो रहा. हेंस इट इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस, रादर इट कॉजेज द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय यूजिंग ATP. सो इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन जो है उसको एक वेस्टफुल प्रोसेस जो है वो बोला जाता है. स्टूडेंट्स, जो फोटो रेस्पिरेशन है उसमें जो डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, सबसे पहली बात है कि फोटो रेस्पिरेशन जो है उसके लिए जैसे हमने स्टूडेंट देखा कि जो C3 पाथवे है या जो केल्विन साइकिल पाथवे है वो कहाँ हो रहा है, जो अपना मीजोफिल सेल्स हैं, मीजोफिल सेल है क्लोरोप्लास्ट, तो मीजोफिल सेल्स के अंदर C3 पाथवे होता है. इसी तरह से C4 पाथवे स्टूडेंट्स हमने देखा था, जो हमारा हैच एंड स्लैग पाथवे है, C4 पाथवे है, वो किस में होता है, पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो मीजोफिल में होता है और पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो बंडल शीट के अंदर होता है. इसी तरह से स्टूडेंट्स जो हमारा C2 पाथवे है विच इज़ ऑल्सो नोन एज फोटो रेस्पिरेशन या ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म भी इसको बोलते हैं. स्टूडेंट्स, इसमें 3 सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं. फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड इज पेरोक्सिसोम्स एंड थर्ड इज द
माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये 3 पाथवेज जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। सो लेट अस स्टडी के फोटो रेस्पिरेशन कैसे होगा। स्टूडेंट्स, फोटो रेस्पिरेशन में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो RUBP है वो किसके साथ कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन के साथ। सो ये स्टेप जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है, राइट। सो RUBP जो है जब वो कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ, और एंजाइम कौन सा है, रुबिस्को, बट एंजाइम क्या एक्ट कर रहा है, एज ऑक्सीजनेज एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो इट इज एक्टिंग एज राइबुलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज, एंड कंडीशन क्या है, लो एटमॉस्फेरिक कंसेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड देर इज इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। नाउ व्हाट हैपन्स, वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स। अभी मैंने आपको बताया इसमें हमारे पास क्या बन रहा था, हमारे पास फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा, एक तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, और एक बनेगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सो एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया और एक बन गया फॉस्फोग्लाइकोलेट। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट बना है, इट लूजेज इट्स फॉस्फेट एंड इट चेंजेस टू ग्लाइकोलेट। सो ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्लाइकोलेट में चेंज होगा। और ग्लाइकोलेट जो है वो जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है, इट इज़ द अर्ली प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये क्या है आपका, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, राइट। सो ये ग्लाइकोलेट जो है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिंथेसाइज हुआ है, इट इज़ देन ट्रांसपोर्टेड टू द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिल एंड दैट इज नोन एज पेरोक्सीजोम। सो ये कहाँ पे आ गया, पेरोक्सीजोम के अंदर आ जाएगा। सो पेरोक्सीजोम के अंदर आके स्टूडेंट ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये बनाएगा ग्लाइऑक्सीलेट। सो दिस इज ग्लाइऑक्सीलेट। सो इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी प्रोड्यूस होगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम। सो जो हमारा ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है, देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू पेरोक्सीजोम, and this glycolate it reacts with the oxygen and oxidize to form glyoxylate, ठीक है, एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। यहाँ पर भी एक एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा। सो उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो आपका जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है लेटर ऑन ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जो आपका ग्लाइऑक्सीलेट बना है स्टूडेंट, देन इट इज कन्वर्टेड टू अमाइनो एसिड दैट इज ग्लाइसिन बाय ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन होता है। सो उससे जो हमारा ग्लाइऑक्सीलेट बना है वो ग्लाइसिन में चेंज हो जाएगा। नाउ ग्लाइसिन क्या होगा, इट विल कम आउट फ्रॉम द पेरोक्सीजोम और वो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिल में मूव कर रहा है, दैट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये आपका ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन अब कहाँ आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, इट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ पेरोक्सीजोम एंड इट विल मूव नाउ टू द माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन जो हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे और वो बनाएंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ सीरीन। सो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग, जो ग्लाइसिन बना पेरोक्सीजोम में वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा टू द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन जो हैं वो इंटरेक्ट करेंगे टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ सीरीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH3 ऑल्सो। सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है इन द फोटोरेस्पिरेशन फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो फोटोरेस्पिरेशन क्या, ऑक्सीजन से हमने स्टार्ट किया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन द फोटोरेस्पिरेशन फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो NH3 यहाँ पे बना है विच इज रिलीज ड्यूरिंग द ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेशन, इट इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये जो हमारे पास सीरीन बना अमाइनो एसिड सीरीन जो है, दिस विल नाउ गो बैक टू पेरोक्सीजोम। देखो वापस जा रहा है पेरोक्सीजोम में, वहाँ पे ये डीअमाइनेशन होगा, राइट। सो ये हाइड्रोक्सी पायरुवेट बनेगा। उसके बाद हाइड्रोक्सी पायरुवेट बनने के बाद स्टूडेंट्स ये क्या है, उसके बाद दोबारा से पेरोक्सीजोम में गया, पेरोक्सीजोम में डीअमाइनेट हुआ, उसके बाद हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड या हाइड्रोक्सी पायरुवेट बन गया इसका, और फाइनली किस में चेंज हो गया, फिर से ग्लिसरेट में चेंज हो गया, राइट। वापस क्लोरोप्लास्ट में चला गया। सो अमाइनो एसिड जो सीरीन है वो पेरोक्सीजोम में जाएगा, उसके बाद डीअमाइनेट होके हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड या हाइड्रोक्सी पायरुवेट बनाएगा एंड फाइनली जो है वो ग्लिसरेट बनाएगा, ठीक है। सो ये जो ग्लिसरेट बना या और फाइनली इसे ग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। ग्लिसरिक एसिड जो है फिर से देखो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंटर हो गया, वहाँ से ये फॉस्फोरिलेटेड होगा टू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो फाइनली क्या करेगा, C3 साइकिल जो है वो उसमें एंटर होगा। सो ये हमारा जो है प्रोसेस है फोटोरेस्पिरेशन का। फोटोरेस्पिरेशन में 3 सेल ऑर्गेनिल
ऑर्गेनेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स एंड फाइनली द माइटोकॉन्ड्रिया। सो हमने देखा किस तरह से स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ गया कि जो C4 प्लांट्स हैं, द फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट अकरिंग इन द C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता बिकॉज दे कैन इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एट द एंजाइम साइट्स। जो C4 प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि C4 प्लांट्स में वहाँ पर जो फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स में क्यों नहीं होता, क्योंकि जो स्टूडेंट C4 प्लांट्स हैं उसमें जो एंजाइम है दैट इज PEP, पेप कार्बोक्सिलेज। पेप कार्बोक्सिलेज जो है इट इज़ इनसेंसिटिव टू ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करता। तो हमने देखा था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो रुबिस्को जो है एज कार्बोक्सिलेज एक्ट करता है, और जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो रुबिस्को एज ऑक्सीजनेज एक्ट करता है, ठीक है। लेकिन जो C4 पाथवे है उसमें क्या होता है, उसमें जो प्राइम एक्सेप्टर हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करते, दैट इज पेप। पेप जो है एंजाइम कौन सा है, पेप कार्बोक्सिलेज। सो वो जो है दैट इज इनसेंसिटिव टू ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करते, इसीलिए जो C4 पाथवेज हैं उसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, दैट इज एब्सेंट। So in C4 plant, photorespiration does not occur because they can increase carbon dioxide concentration at the enzyme level. This takes place when C4 acid from the mesophyll is broken down in the bundle sheath cell to release the carbon dioxide. So ये जो है वो रुबिस्को जो एक्टिविटी है as oxygenase उसको ये मिनिमाइज कर सकता है. So due to the lack of photorespiration, द प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड्स आर बेटर इन द C4 प्लांट्स, क्योंकि वहाँ पे हमने अभी देखा फोटो रेस्पिरेशन हार्मफुल प्रोसेस है, तो इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, इसलिए जो C4 प्लांट्स हैं उनका जो प्रोडक्टिविटी है, उनका जो यील्ड है वो बेटर है, राइट स्टूडेंट्स। एंड इन एडिशन टू दीज प्लांट्स दे ऑल्सो शोज द टॉलरेंस टू द हायर टेम्परेचर. Okay students, so that's all about photorespiration. Now we will start the next topic, that is the various factors which are affecting the rate of photosynthesis. स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को इफ़ेक्ट करेंगे. जैसे इंटरनल फैक्टर्स हम नंबर हैं, साइज़, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ. ऑफ कोर्स अगर नंबर ऑफ लीव्स ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा. साइज़ ऑफ द लीफ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इफ़ द लीव्स आर वेरी स्मॉल, दे आर वेरी रिड्यूस्ड, ऑब्वियसली द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो कम होगा. इफ़ द लीव्स आर बिग इन साइज़, ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस जो है वो ज़्यादा होगा. देन एज एंड ओरिएंटेशन है, मेसोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट हैं, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल. अगर अब क्लोरोफिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फोटोसिंथेसिस में, तो ऑफकोर्स अगर प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है उससे अच्छा होगा. एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जैसे सनलाइट है, टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एंड वाटर. Students, before we discuss the effect of various factors on the rate of photosynthesis, we will discuss about the Blackman's law of limiting factor. So Blackman's law of limiting factor जो है ये बहुत एक important law है. Students, इसको हमने ये जो law कहते हैं कि अगर जो कोई biochemical process है, if it is affected by more than one factor, जैसे हमने देखा कि photosynthesis जो है it is affected by carbon dioxide है, light है, water है, कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस इफ इट इज इफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, देन इट्स रेट इज डिटर्मिन्ड बाय द फैक्टर नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू, right? So it is the factor which directly affects the process if its quantity is changed. So जो factor जो है वो अपना nearest होगा minimal value पे, उसका rate कोई भी biochemical जो process है जिसको more than one factors affect कर रहे हैं, so उसका जो rate है it is determined by the factor which is nearest to its minimal value. For example, plant with green leaves, optimal light and carbon dioxide may not photosynthesize. Why? In the low टेम्परेचर. सो यहाँ पे जो टेम्परेचर जो है वो एक ऐसा फैक्टर बन गया, अगर प्लांट को एक ऑप्टिमम लाइट भी मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन भी ठीक है, फिर भी वो फोटोसिंथेसाइज नहीं करेगा इन द लो टेम्परेचर, राइट?
अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर देंगे तो इट विल स्टार्ट फोटोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट्स, सो ये एफ ब्लैकमैन है जिन्होंने अपना लॉ दिया, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो ऑफ द ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर। सो ये ग्राफ है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे शो किया गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स के जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो भी इंक्रीज होगा। बट एक स्टेज पे जहाँ पे आप देख रहे हो कि फर्दर जो है अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज भी हो रहा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, और ये आप देख सकते हो कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे आप एक लाइन देख सकते हो कि ये कांस्टेंट हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट की जो लाइट फैक्टर जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर बन गया, राइट। सो एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन कपल्ड विद इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी, अगर हमने लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया, लाइट से मीडियम कर दी लाइट इंटेंसिटी, सो उसमें क्या होगा, अगर हम लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो इंक्रीज हो रहा है व्हेन द लाइट इंटेंसिटी इज रेज्ड फ्रॉम लो टू द मीडियम। सो ये जो मीडियम लाइट इंटेंसिटी है, अगेन देखो आप ये सैचुरेशन हो गया, वो पहले इंक्रीज हो रहा है लेकिन फिर से वो ऐसे सैचुरेशन शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मीडियम लाइट इंटेंसिटी फिर से एक लिमिटिंग पॉइंट बन गया, एंड एनी एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल नॉट रेज द फोटोसिंथेटिक रेट नाउ, ठीक है। सो वही रेट जो है वो फिर कांस्टेंट हो रहा है। अगर हम लाइट इंटेंसिटी को फर्दर इंक्रीज करते हैं, मीडियम से हाई लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पहले इंक्रीज होगा, राइट, इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद एक स्टेज पे जाके फिर जो है वो कांस्टेंट जो है वो शो हो रहा है। सो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि कोई भी जो फैक्टर है वो लिमिटिंग हो सकता है। बिसाइड लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड वी हैव अदर फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, वाटर, दे मे ऑल्सो बिकम लिमिटिंग। सो दिस इज ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ओके, नाउ लेट्स सी how the light affects the rate of photosynthesis, the quality of light। स्टूडेंट्स हमने photosynthesis में पढ़ा कि स्पेक्ट्रम में जो राइट एंड रेड है और जो ब्लू पार्ट है स्पेक्ट्रम का वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है फॉर फोटोसिंथेसिस। सो लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करेगी। लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एट लो लाइट इंटेंसिटी। सो आप देख सकते हो कि किस तरह से लाइट के साथ जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस तरह से लिंक्ड है। लाइट हायर, जैसे लाइट इंटेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा हाई होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है पहले इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक स्टेज आएगी उसके बाद ये फैक्टर जो है एक लिमिटिंग फैक्टर जो है वो बन जाएगा। लाइट सैचुरेशन अकर एट 10% of the full sunlight. Hence, except for the plants in the shade or in the dense forest, light is rarely a limiting factor. So, high increase जो होगा incident light में वो chlorophyll को break कर देता है और उससे photosynthesis जो है वो decrease होगा। So next is कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन एनवायरनमेंट में बहुत कम रहता है, 0.03 से 0.04%। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन इंक्रीज होता है अबाउट 0.05, सो इट कॉजेज इंक्रीज इन द कार्बन फिक्सेशन, बट उसके बियॉन्ड अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा तो इट विल कॉज द डैमेज। At low light conditions, C3 and C4 plants do not respond to high carbon dioxide condition. अगर light conditions low हैं, ठीक है, तो C3 और C4 प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कंसनट्रेशन पे रिस्पॉन्ड नहीं करते और हाई लाइट इंटेंसिटी पे वो इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो करेंगे। बिकॉज C3 प्लांट में स्टूडेंट्स हमने देखा कि उसमें फोटो रेस्पिरेशन भी होगा। अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे बढ़ जाती है तो वो प्लांट्स जो हैं वो स्विच करेंगे टू फोटो रेस्पिरेशन। Now, C4 plants shows the saturation at about 360 milliliter. C3 plants respond to increased carbon dioxide concentration and saturation is seen only beyond 450 ml. Thus, current availability of carbon dioxide level is limiting to the C3 plant. So, किस तरह से वो वहाँ पे एक limiting factor की तरह act करेगा। So, students जो high concentration है कार्बन डाइऑक्साइड की उससे plants का जो photosynthetic
जो रेट है वो इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी जो है हायर होगी. सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स वी आर मेकिंग ग्रीन हाउसेस. सो ग्रीन हाउस में क्या होता है, तो वहाँ पे इंक्रीज फोटोसिंथेसिस होता है, हाई कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट किया जाता है, विच इज़ गुड फॉर सम क्रॉप्स जैसे टमाटोज़ हैं, बेल पेपर्स हैं, और भी कई तरह के क्रॉप्स हैं जो कि ग्रीन हाउसेस में ग्रो किए जाते हैं. सो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करता है. देन थर्ड इज द टेम्परेचर. Dark reactions being enzymatic are temperature controlled. Influence of temperature on light reaction is very less. C4 plants जो हैं they respond to higher temperature and they show high rate of photosynthesis, right? C3 plants जो हैं they have much lower temperature optimum. Temperature optimum of plants also depends upon their habitat. से plant किस तरह के habitat में grow कर रहा है. जो tropical plants हैं उनका higher temperature optimum होता है, and then the plants which are adapted to the टेम्परेट क्लाइमेट, जो टेम्परेट क्लाइमेट में ग्रो करेंगे उनका जो लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा, और जो प्लांट्स जो हैं वो ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो करते हैं दे हैव हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम. Next is the water. Water is also very important factor. So water stress closes the stomata and hence reduces the carbon dioxide availability. So water stress के कारण क्या होगा, stomatas close हो जाएंगे और carbon dioxide availability जो है वहाँ पे जो reduce हो जाएगी. So water stress से क्या होगा, आप देख सकते हो leaves जो हैं उनका wilting हो गया, surface area of the leaves जो है वो reduce हो जाएगा, और surface area कम होगा तो metabolic activity जो है वो भी reduce हो जाएगी और process ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो भी सफ़र करेगा. सो स्टूडेंट्स, तो हमने देखा ये कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करते हैं. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन द हायर प्लांट्स दैट इज़ ओवर. सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी डिस्कस्ड इन डिटेल about the process of photosynthesis, the light phase, the dark phase, the C3, the C4 and the C2 pathway, and finally we discussed about the various factors. First we discussed about the Blackman's law of limiting factors, and then we discussed about the various factors which influence the rate of photosynthesis. So I hope students ये chapter आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. Thanks for watching. Have a nice day.